Yes. Welcome, dear all. Here is Professor Rameshwar Gagrani from Gagrani IIT JEE NEET CET Foundation. This is our online portal where we are teaching here live. That means this is a live streaming in this lockdown period. We have started this online portal for those aspirants who are willing to opt and willing to appear for the national entrance exams like IIT, NEET, and state-wise various entrance exams. And therefore, Team Gagrani, Professor Rameshwar Gagrani, Professor Someshwar Gagrani, and all Gagrani associates, they are teaching you on this online portal. We are enjoying, you are all enjoying with us because your presence, more than 50 to 55 candidates are daily coming. They are attending these 4 to 5 hours, 5 to 6 hours online session. Even on Sunday, your presence matters. On Sunday, your presence, more than 50 candidates that inspired us, and that's why we are very happy to continue these lectures. Remember, we have not charged a single rupee from any candidate for this online portal. Gagrani online IIT JEE NEET पोर्टल पर हमने किसी कैंडिडेट से 1 रुपया भी नहीं लिया है और ना ही लेंगे। जब तक लॉकडाउन पीरियड है, हम लोग कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत ही बढ़िया डिटेल्स में कंसेप्ट वाइज लेक्चर आपको हमें पढ़ाने हैं और आपको देने हैं। और मैं चाहूंगा सभी से, सभी सिंसियरली लेक्चर अटेंड करें, सभी पढ़ाई को लगे। जो भी आपके डाउट्स है 100% हम क्लियर करेंगे, ये मैं आप सभी को एश्योरेंस दे रहा हूं। So we have 2 branches. One is at Shahda, another one is at Nasik. Very soon we will start our classroom coaching with full force. Since 22 years, we have been running these courses. So we have the proven track record as well as experience of reaching to the destinations and to make your career. We are learning here chemistry. Yesterday we have seen, कल हमने देखा यहाँ पर stability of orbitals के बारे में हमने समझ लिया था. Stability of atom with respect to the orbitals. ये हमने समझने की कल कोशिश की थी. फ्यू क्वेश्चंस वेयर देयर, यस्टरडे कुछ क्वेश्चन भी थे. तो यहाँ पर मैंने बताई थी कि जब फुल फिल्ड, दैट मींस कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड. अब क्या होता है कि जो न्यू कमर स्टूडेंट है, न्यू कमर्स को तो तुरंत समझने में मुश्किल हो जाती है. न्यू कमर्स सोच रहे सर क्या बोल रहे कंप्लीटली फिल्ड, सर क्या बोल रहे हाफ फिल्ड. अरे भाई, इसके पहले ये सारी चीजें हमने right from inception, that is starting of this online portal, we have already learned everything. हमने ये सब पढ़ा है, बिल्कुल रिपीट किया है मल्टीपल टाइम्स. और जो स्टूडेंट अभी कल परसों ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, उन्होंने ऑनलाइन अपने gagrani-classes.com पे जाके अपने जो ऑनलाइन वीडियो है वो उन्होंने देखने हैं, व्यू कर, उन्होंने दे मस्ट बी वॉच दीज वीडियोज. दे आर ऑल बेसिक्स एंड दे आर ऑल द whatever we are teaching in daily regular schedules, we are updating all these videos. So you can get the information, you can learn from these videos. So yesterday we have seen about completely filled and half filled and their stability. So why completely filled and half filled orbitals are stable? One reason is that due to their symmetry. Due to their symmetry, they are completely perfectly symmetrical. That's why they have extra stability. And when they have extra stability, they have low energy state. They have low energy state. When we acquire extra stability, when we become stability, that stability is the lowest energy state of any person, any object in the world. विश्व में किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी. जब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जब आप मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हो तो आपका एनर्जी नहीं के बराबर हो जाता है, आप जीरो एनर्जी पर आ जाते हो, मतलब आपका एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट हो जाता है. केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरी बॉडी इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट ये स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करता है. केमिस्ट्री बोलो या यूनिवर्स बोलो, केमिस्ट्री इटसेल्फ इट इज अ यूनिवर्स, रिमेंबर योरसेल्फ. यहां पर मैं ठीक तरह से एक बात आपको बताना चाहता हूं कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट अचीव करने की कोशिश करता है एनीबॉडी. जब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट अचीव करता है मतलब वो हायर स्टेबिलिटी मिला लेता है. जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है वो हाईली अनस्टेबल है, जिसके पास एनर्जी कम होते गई वो स्टेबल होते गए. जैसे स्टेबिलिटी मिलते जाएगी आपकी एनर्जी कम होती जाएगी. सो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट कब मिलती है? जब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, दोनों करीबन सेम में आएंगे. हालांकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल शुड हैव मोर स्टेबिलिटी देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. ये भी एक हम लोग एक मोड पर बता सकते हैं, लेकिन इसके हमें बहुत से
एविडेंस देखने पड़ेंगे। तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो आपके सामने मैंने दो सेक्शंस रखे हैं, एक तो सेक्शन दिया है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसने मिला है जो कंप्लीटली फिल्ड है, पी ऑर्बिटल है, पी सबशेल है, px2 py2 pz2। और जब आप ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स देखोगे यहां पर, ये px1 py1 pz1, ये जो दो ग्रीन कलर में मैंने सिंबॉलिकली आपको बताया, ये हाफ फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड है, और बाकी रिमेनिंग जो है ये नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली फील्ड है। जब कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आपके सामने आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर टू बी आइदर हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। रिमेंबर योरसेल्फ, इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी जो होती है, एटम की स्टेबिलिटी जो होती है, वो विद रिस्पेक्ट टू दी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिलअप किए गए उस पर है। नाउ ड्यू टू देयर सिमेट्री, आई हैव रिटन हियर कंप्लीटली फील्ड एंड half filled, extra stability due to their symmetry, and second reason is that they can exchange due to the similar energy। इनमें एनर्जी सभी की सेम होती है, ड्यू टू द सिमिलर एनर्जी दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस। रिमेंबर योरसेल्फ, मैं जो बता रहा हूं यहां पर एक बात का आप नोटिस करो, एक तो रीजन हो गया कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर हैविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन रिमेन देयर, वहां पर वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए तरफ बढ़ते हैं। अगर उनको वो पॉसिबिलिटीज है, इफ देयर आर चांसेस टू एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अकॉर्डिंगली, electrons will move accordingly, electrons will move accordingly if they gets extra stability। यह एक चीज आप ध्यान रखो, एक बात मैंने बताई। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों है, तो उसके दो रीजन बताए गए। एक तो कंप्लीट सिमेट्री के लिए बताया, ड्यू टू द सिमेट्री, ड्यू टू देयर सिमेट्री, एक तो ये रीजन बताया, और दूसरा रीजन क्या है, बीइंग इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ द डिजनरेट ऑर्बिटल्स। इनकी डिजनरेट ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी ये सेम होती है, इक्विवेलेंट एनर्जी होती है ना, px py pz, इन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। तो क्या होगा, दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस बीइंग सेम एनर्जी, दे आर प्रेजेंट और दे आर प्रेजेंट इन अ सेम एनर्जी शेल एज वेल एज सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। मेरी बात ठीक से समझ रहे? दो इंपॉर्टेंट रीजन दिए गए अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड इन योर टेक्स्ट। अगर हम टेक्स्ट की बात करते हैं और लॉजिक की बात करते हैं तो दो रीजन दिए गए। एक रीजन यह दिया गया है ड्यू टू देयर सिमेट्री, एंड सेकंड रीजन क्या दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस बिकॉज दे बिलोंग्स टू दी सेम एनर्जी लेवल। ये मैं बताना चाहता हूं, वो उनकी एनर्जी लेवल सेम होने से क्या हो सकता है, वो वहां पर एक पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, मींस दे हैव द फ्रीडम टू एक्सचेंज देयर पोजीशंस, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। वहां पर उनका एनर्जी सबसे कम होता है, क्यों? क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। मैंने ये बात तीसरी बार बताई, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो आपकी एनर्जी कम होती है, आप जितना स्टेबल होगे उतनी एनर्जी कम होती जाएगी। एंड स्टेबिलिटी इज द टारगेट, नॉट रिड्यूसिंग एनर्जी इज दिस टारगेट। हमें एनर्जी रिड्यूस करना ये टारगेट नहीं, हमारा टारगेट क्या है, स्टेबल होना है। वी वांट टू एक्वायर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री में हर एलिमेंट, हर एटम, हर कंपाउंड, हर रिएक्शन वो चाहती है एज सुन एज, जैसे मैं एकदम सिंपल लॉजिक में आपको बताऊं, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप मेरे एग्जांपल से बहुत प्रेरित हो जाते हो, मुझे पता है, राइट है ना? आप, मैं जो एग्जांपल देता हूं उसमें बहुत प्रेरित हो जाते हैं, आपको पता है, बहुत से एग्जांपल मैंने दिए, बीच में काजू कतली का दिया था। अब एक और एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग किसी बस स्टैंड पे जाते हैं और हमें जाना होता है, मान लो हमें अपने गाँव जाना है, मान लो आपके नासिक के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका गांव शहादा है, जिसके पुणे है उनका गांव शहादा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो जैसे हम बस स्टैंड पे जाते हैं, जैसे मुझे शहादा आना है, मैं शहादा से बिलोंग करता हूं, मैं नासिक से बस स्टैंड पे गया, तो मेरी कोशिश क्या होती है, एज अर्ली एज आई शुड गेट द बस एंड एज अर्ली एज आई शुड रीच टू माई डेस्टिनेशन। दैट इज व्हाट स्टेबिलिटी। मुझे बहुत जल्दी बस मिले, ये मेरी मनोकामना होगी, ये मेरी आशा होगी, मैं इसी मूड में रहूंगा कि मुझे जल्दी अच्छी बस मिल जाए, और सिर्फ बस नहीं मिले तो बस में मुझे कंफर्टेबल सीट मिले, सो दैट आई विल बी स्टेबल देयर। और एज अर्ली एज बस जैसी निकलेगी तो एज अर्ली एज आई शुड रीच टू माई डेस्टिनेशन, मेरे गांव में मुझे पहुंचना है। व्हाट इज मीन? दिस मीन्स दैट यू वांट द कंफर्ट, यू वांट द स्टेबिलिटी। हर व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, आई वांट द स्टेबिलिटी। सो इन केमिस्ट्री ईच एंड एवरी कंपाउंड, whenever it interact, it wants to produce its product as early as possible.
वो चाहता है कि एज अर्ली एज मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊं। दिस इज द फेनोमेनन ऑफ केमिस्ट्री। ये प्रिंसिपल पार्ट है केमिस्ट्री का, जो मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको समझा पाया हूं। अब मैं ये बता रहा हूं कि कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रहना चाहिए। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो है ये, और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड का मतलब क्या है ये ठीक से समझ लो। जैसे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पोजीशन डिफाइन कर देता हूं। मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल, पी सबशेल में। आई हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल, आई हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। सो P3 and P6, these are high, these have extra stability, so I shall write। अब मैं इसको लिखूंगा यहां पर। आप अगर ठीक से देख पाओ तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इधर लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर मैं पी सबशेल की बात करूं, पी सबशेल, आप ठीक से देखो, आपको दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से दिखता होगा। हाँ, पी सबशेल की बात करूं तो यहां पर मैं P3 एंड P6, these are एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। क्यों? ये किस तरह से होगा? ये पिक्चर आपके पास इस तरह से होगा और ये पिक्चर आपके पास इस तरह से होगा। आप ठीक से देखो, आप बिल्कुल सही तरीके से देखो, मैं जो बता रहा हूं, जहां मैं लिखूंगा वो ध्यान में रखना है। मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मैंने शो कर दी। P3 पोजीशन हो गई, यह फील्ड है, कंप्लीट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिला ड्यू टू देयर सिमेट्री, और दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन ड्यू टू द डीजनरेट स्टेट। डीजनरेट मतलब ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। सिमिलरली यहां पर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पहले रखे, मेरे पास थे, और मेरे पास फिर पेयरिंग कब स्टार्ट होगा? हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अनलेस ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड, यू कैन नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन्स। हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बराबर ना? पेयरिंग इज व्हेन द पेयरिंग इज पॉसिबल, अनलेस ऑल डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑक्युपाई द सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब तक वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं कर देते, पेयरिंग नहीं होता है। तो मैंने चालू कर दिया पेयरिंग, मेरे पास 6 है ना, अब मैंने पेयरिंग शुरू किया। देखो, अब ये हाफ फील्ड, ये कंप्लीटली फील्ड हो गए। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, ये ग्रीन कलर में देखो, ये हैव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू देयर सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल। और दूसरी एक क्या बात है, ये दे कैन एक्सचेंज देयर इलेक्ट्रॉन्स। मुझे यहां पर एक शंका है जो मैं आपको पूछना चाहता हूं। देयर इज वन क्वेश्चन टू यू, इवन इन माय माइंड। अगर कंप्लीटली फील्ड है, सो हाउ दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस? दिस इज वन क्वेश्चन। हाफ फील्ड में तो पॉसिबल है, हाफ फील्ड में कैसे, ये इधर चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है, बट कंप्लीटली फील्ड में हाउ इट इज पॉसिबल? This is one question to you all as well as this is to me. We will find its answer, no doubt at all. हम लोग इसका जवाब जरूर देखेंगे कि कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड में जो इंपॉर्टेंट दिया गया है, सिमेट्री में समझ सकता हूं, वी कैन अंडरस्टैंड द सिमेट्री, लेकिन जो दूसरा पॉइंट दिया है, दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस, तो ये हाफ फील्ड में तो पॉसिबल है टू एक्सचेंज देयर पोजीशन। हाउ इट इज पॉसिबल इन कंप्लीटली फील्ड? सो इट इज दिस इज स्टिल अ डाउट टू अस। मैं आगे बढ़ रहा हूं, दूसरा मैं डी ऑर्बिटल ले रहा हूं, ये मैंने पी सबशेल लिया है, ये मैंने पी सबशेल लिया, एक में मैंने हाफ फील्ड और एक में मैंने कंप्लीटली फील्ड कर दिया। देखो, अब मैं ले रहा हूं यहां पर दूसरा एग्जांपल ले लो, डी का, डी सबशेल। आप देखते जाओ, आप बिल्कुल, आपको स्क्रीन पे देखना है और मैं जो बोल रहा हूं पूरी तरह से सुनना है, तभी ध्यान में रहेगा। मैंने ले लिया या फिर डी सबशेल, कलर बदल रहा हूं इसलिए आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। अब इसका क्या होगा, मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम नहीं निकल रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक तो पॉसिबिलिटी D5 होगी, और एंड दूसरी पॉसिबिलिटी D10। ये हाफ फील्ड रहेंगे, ये कंप्लीटली फील्ड रहेंगे। अब मैं इसको अपने कलर में कर देता हूं, D5 एंड D10, दिस इज द कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड। ये आपके सामने मैंने रख दिया। देखो, आप बिल्कुल सही एग्रीड हो गई है दोनों पिक्चर से, क्योंकि डी सबशेल में 5 d ऑर्बिटल्स है। हाउ मेनी d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन d सबशेल? 5। तो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो तो ये पोजीशन आएगी D5, और पांचों में अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन रख दे तो D10 पोजीशन आएगी। तो क्या हो गई, एक हाफ फील्ड हो गई और एक कंप्लीटली फील्ड हो गई। बिल्कुल सही है ना? तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की पोजीशन हो गई, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की पोजीशन हो गई। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, किसी स्टूडेंट को अभी तुरंत ना समझे। कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि यार थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। टफ कुछ नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं, लेकिन मैं जो वर्डिंग बता रहा हूं ये आपको समझना जरूरी है। आप तक मेरी वॉइस पहुंचना जरूरी है।
मैं यही बता रहा हूं कि आप तक मेरी वॉइस पहुंचना जरूरी है। यहां पर मैं बिल्कुल डायग्रामेटिकली आपको बता रहा हूं कि पोजीशन कौन सी होगी, P3, P6, D5, D10। F के लिए चले जाओ, F के लिए क्या होगी फिर, F7, F14 होगी। अगर मैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल की बात करूं तो F ऑर्बिटल कितने हैं, 7 F ऑर्बिटल से, और उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या बता रहा है, हुन्स रूल क्या बताता है, अगर आपके पास F सबशेल में अगर आपके पास 7 के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तभी आप पेयरिंग शुरू कर सकते हैं। अगर 7 के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं तो आप पेयरिंग कैसे शुरू करोगे, राइट है ना। अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स F सबशेल में है तो यू कैन पुट एज अ फर्स्ट ऑर्बिटल में एक रखोगे, सेकंड ऑर्बिटल में एक रखोगे। F सबशेल की बात कर रहा हूं मैं। आपके स्पीकर म्यूट करो, हम लोग आप जो गाने कभी बाद में गाएंगे, आपके स्पीकर म्यूट करो। मुझे पता है आप सभी को गाना गाना भी है, यू वांट इट बिकॉज यू हैव ऑल सिंगिंग टैलेंट्स, सो डेफिनेटली वी विल सिंग लेटर ऑन। अभी तो हमें सर लर्न करना है भाई, अभी तो हमें लर्न करना है ना, तो कृपया आपके स्पीकर म्यूट कर लो। हाँ मुझे पता है कि आपको सिंगिंग करना है तो हम लोग जरूर सिंगिंग भी करेंगे, लेकिन डांस नहीं है भाई, क्योंकि वो झिंगाट में बहुत बार क्या हो गया है, वो स्टेज टूट गया है, हमें सबको पता है। जब भी स्टेज पे जाते हैं तो हमें सभी को पता है, पहले देख लेना पड़ता है स्टेप्स कितना मजबूत है। चलो ध्यान दो, मैं ये बता रहा हूं कि मैं डी सबशेल की मैंने स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं एफ सबशेल में जाता हूं, नाउ आई एम गोइंग टू एफ सबशेल। अगर मैं एफ सबशेल लिख दूं, यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं एफ सबशेल। एफ सबशेल मैं कलर बदल रहा हूं, यहां पर पेन में अलग अलग कलर से लिख रहा हूं, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। एफ सबशेल में क्या स्थिति रहेगी, एफ सबशेल मेरे पास एक ये है एंड एक ये है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है। स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करूं तो एक में 7 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक में 14 आ सकते हैं। हाँ, इससे कम जब अगर हो गए, इससे कम हो गए, इससे कम हो गए, इससे कम हो गए, तो ये पोजीशन आएगी 2 इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की। 5 हो गए तो इस तरह से आएगी, आप देख रहे हैं। सो आई एम नाउ व्हाट आई टोल्ड यू एवरीथिंग। मैंने क्या बताया आप सभी को, मैंने कंपैरिजन बताई, आप समझ रहे हैं, मैंने कंपैरिजन बताया आप सभी को। मैंने क्या बताया, कंपैरिजन बताई, क्या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहां मिलती है, एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज द लोवेस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलानी है, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू बी आइदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, ड्यू टू देयर सिमेट्री एंड दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस। दैट इज अ स्टेट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी लेवल, दैट इज द स्टेट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी लेवल। ये जो है ये उनकी लोवेस्ट एनर्जी लेवल की स्टेट है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आपको कुछ डाउट्स है इसमें, क्या आप कुछ पूछ सकते हैं? अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप स्पीकर ऑन करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। सर हाँ, एक मिनट, सम क्वेश्चंस आर देयर, लेट मी सी। एक बार मुझे देख लें दो। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के अलावा और कौन सी बुक बेस्ट है? स्टेट बोर्ड और गगरानी आईआईटी जेईई सीईटी की नोट्स। हाँ, रेफरेंस बुक जरूर है, जैसे सिंगेज अच्छी है, मॉडर्न एबीसी अच्छी है, तो रेफरेंस बुक्स है, वो सभी अच्छी है। और सर जो कंप्लीटली फील्ड, और एक मिनट कोई स्टूडेंट्स आना चाहता है, हर्षदा जल्दी आ जाओ ऑनलाइन, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है बेटा। और सर जो हाँ, टीचिंग स्टार्टिंग से होगा, मैंने बताया सारे चैप्टर रिवाइज हो गए, मतलब सारे चैप्टर फर्स्ट से सिखाए जाएंगे, आप बेफिक्र रहो। फर्स्ट डे से जैसे आपका कुछ हुआ ही नहीं ऑनलाइन, इसी तरह से आपके क्लासरूम कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट न्यू कोर्स होगा। जैसे क्लासरूम कोचिंग शुरू होगा उसके पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे, कुछ दिन में हम पेरेंट्स मीटिंग लेके डिक्लेयर करेंगे, आपका एडमिशन कंफर्म कराएंगे। हाँ सर, जो कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड नहीं होते उन्हें हम डीजनरेट बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल बोलते हैं, उन्हें हम डीजनरेट बोलते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है बिलोंग्स टू दी सेम शेल, बिलोंग्स टू दी सेम शेल एंड सब शेल। इवन सेम शेल सब शेल ना बोले तो भी चलता है, क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी भी सेम होती है। 2s और 2p की भी एनर्जी सेम होती है अगर वो सेकंड शेल से बिलोंग करते हैं। 3s और 3p की भी एनर्जी सेम होगी, 3s 3p 3d एनर्जी सेम होगी बेटा। आप ध्यान से सुनो,
3s 3p 3d की एनर्जी भी सेम ही होगी अगर वो बिलोंग्स करते सेम शेल से, लेकिन उसमें स्लाइट डिफरेंस जरूर होगा क्योंकि s सब शेल अलग है, p सब शेल अलग है और d सब शेल अलग है. सो सम स्लाइट डिफरेंसेस आर देयर, बट इफ दे बिलोंग्स टू द सेम शेल देयर एनर्जीज आर सेम. डीजनरेट तो हम उनको बोलते हैं, ये सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स है. थोड़ा ध्यान दो, किसी ने सवाल पूछा है, somebody asked me टैलेंट क्वेश्चन आस्क्ड. अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेट मी, इसने पूछा है, पार्थ गुजराती ने पूछा है, ये सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स है बिकॉज दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी px. ये भले ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, ये डीजनरेट है, ये डीजनरेट, ये सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स है. सर ब्लैक बोर्ड से थोड़ा, हाँ ठीक है, देखिए आप ठीक से देखिए, ये सारे डीजनरेट ऑर्बिटल ही है, लेकिन इसमें अगर हाफ फील्ड है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल है क्योंकि वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है. कंप्लीटली फील्ड है तो वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है. जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे होते हैं. और एनीबॉडी वांट्स ऑलवेज हायर स्टेबिलिटी, मींस अल्टीमेटली इट हैज अ लोवेस्ट एनर्जी स्टेट. सर हाँ बोलिए. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रिपीट कीजिए ना. हाँ बता रहा हूँ, ठीक है. देखो हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज है, आप जरा ध्यान दो इधर, जस्ट मिनट. बहुत बारिश आ रही है मम्मी के, एक सेकंड. बारिश आ रही है. देखो जो मैं बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बारे में किसी ने पूछा है. तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या है, ठीक से सुनो, सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देंगे. मेरे पास p सब शेल है, बिल्कुल ध्यान से सुनो. आपकी आवाज म्यूट करो भाई. हाँ, यू आस्क्ड मी अबाउट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किस तरह से होती है. आप बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दीजिए. मेरे पास p सब शेल है, आपको एग्जांपल लेना है p सब शेल का. कितनी पॉसिबिलिटीज है p सब शेल में, आप देखो बोर्ड पे, आपको जवाब नहीं देना, मैं बोल रहा हूं. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ p सबशेल्स विथ रिस्पेक्ट टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मुझे रखने इन केस ऑफ p सबशेल, तो मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन आई पुट? 6 इलेक्ट्रॉन्स. p सबशेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन रखूंगा? 6 रखूंगा. आपको सभी को पता है, बिल्कुल तय है ये बात, राइट? सभी को क्लियर होगा. अब ध्यान दो, 6 इलेक्ट्रॉन मैं किस तरह से रख सकता हूं? तो मैं कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो रख सकता हूं. अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन p सबशेल की कैपेसिटी, तो आई कैन पुट 1 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. So there are 3 p orbitals. मेरे पास 3 p ऑर्बिटल है, px py pz. आप देखो, px py pz, px py pz, px py pz, px py pz, px py pz. मेरे पास ये टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर. How can I place the number of electrons I have in p subshell and hence p orbitals? तो p सबशेल में मैं 1 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता हूं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं. समझो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आप बिल्कुल ध्यान दो. आई हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी. 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऐसे रखूंगा ना, ये तो पॉसिबिलिटी है. आप ऐसा नहीं रख सकते, ये इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं रख सकते. px में रखा है तो आप बोल दो सर मैं ऐसा कर देता हूं, यहां पर py में रख देता हूं, यहां नहीं. क्यों नहीं? इसकी वजह हम लोग आगे देखेंगे. मैंने रख दिया 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है. Hund's rule से चलूंगा मैं. Are you agreed? I shall go accordingly Hund's rule of maximum multiplicity. Unless whatever the number of electrons you have, unless the degenerate orbitals are singly occupied, you cannot pair them. मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस तरह से रखे px py. मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, Hund's rule px py pz. इस तरह से रख दिए. मैं इस तरह से नहीं रख सकता, यहाँ पर 2 रख दूं, यहाँ पर 1. मान लो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, ये और इसको कट कर दिया, तो नहीं चलेगा. तो मैंने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन है, px py pz करके रख दिए. मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने हुड्स रूल का यूज किया. पहले सिंगल 3 रख दिए, फिर बाद में मैंने डबल किया, हो गए 4 पूरे. मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है. आपकी आवाज आ रही है, आप म्यूट करो आपके स्पीकर. आई हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ आई पुट? अकॉर्डिंग टू द हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, आई शैल गो फॉर सिंगल 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 सिंगल. 3 हो गए, देन आई पेयर्ड इट. आपकी आवाज आ रही है. ओके देखो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कैसे रखे? पहले रेड कलर से सिंगल रख दी, हुड्स रूल 1 2 3, एंड देन
रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आई स्टार्ट टू पेयर, फिर मैंने फिर से px में और एक रखा, py में और एक रखा, तो ये होगा px2 py2 pz1, ये भी होगा। मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस तरह से रखे, पहले सिंगल रख दिए 1 2 3 अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। पेयरिंग अनलेस पेयरिंग, when pairing will start unless you singly occupied all positions, all degenerate orbitals, मैंने सिंगल रख दिए। अब मेरे पास और 3 इलेक्ट्रॉन बचे, मैंने स्टार्ट किया पेयरिंग, कर दिए मैंने, p सबशेल के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए। अब ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आप सभी देखो, ये मैंने हुंस रूल के मुताबिक किए हैं। डियर ऑल लिसन इट वेरी केयरफुली, मैंने यहां पर हुंस रूल यूज किया है, मैंने हुंस रूल कहीं ब्रेक नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि ब्रेक का हो जाता था, थोड़ा ध्यान दो कहां ब्रेक होगा। मान लो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं इस तरह से रख दिए, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रख दिए, यहां हुंस रूल ब्रेक हो गया, तो मैंने कहीं हुंस रूल ब्रेक नहीं किया, ये मैं बता रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने सिंगली ऑक्युपाइड किए, सो लेट मी रिमूव इट एंड एज इट इज इट वाज देयर।